أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درست مقام درست حرام. میں آپ لوگ کو میوٹ کر رہی ہوں. امینہ تو بس ایک منٹ میوٹ آل کر دیتی ہوں. چلیں تو الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کی تھی آیا نمبر 4 and 5 of سورہ المائدہ. انشاءاللہ ٹوڈے we are going to start from آیا 6 of سورۃ المائدہ. آیا 6 جب آپ دیکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو ہم کو سب آتا ہے, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, آپ کیوں پڑھا رہی ہیں, لیکن پھر بھی پڑھانا ضروری ہے because we are doing each and آیا of the Quran. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یا ایھا الذین آمنوا, او یو دوز ہو بلیو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. اذا قمتم الی الصلاۃ, اذا قمتم when you stand, قام یقوم قیام when you stand, الی الصلاۃ یا الی الصلاۃ for the prayer or to the prayer. اصل میں stand up for the prayer, to the prayer ہے, لیکن it's for the prayer یوز ہوتا ہے. الا جو ہے کیونکہ ہم نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں, نماز جب پڑھنے لگتے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے, جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو کیا کرنا ہے, فغسلو, فغسلو غسل غسل یغسل غسلن, غسل یغسل غسلن کا مطلب کیا ہے, ٹو واش. جیسے ہم غسل کرنا کہتے ہیں, تو غسل ہم تو اردو میں غسل کہتے ہیں اور اردو میں ہم وضو کہتے ہیں اور عربک میں بھی وضو کہتے ہیں, لیکن اغسلو کا مطلب, اغسلو کا مطلب یہ ہے کہ ٹو واش, ٹو واش, غین سین لام, ٹو واش. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, فعل الامر ہے فغسلو, then you wash وجوہکم, your faces. وجوہ یعنی وجہ یعنی ایک فیس کو کہتے ہیں, وجوہ یعنی faces. تو wash your faces وایدیکم, and your hands, and your hands جو اپنے ہاتھ ہیں, لیکن اس کو کلیئر کر دیا ہے الی المرافق, الی المرافق. مرافق کیا سنگولر کیا ہوتا ہے, مرفق, مرفق اور یا المرفق, اور مرافق از پلورل. کیا چیز ہوتی ہے مرافق, دی elbows. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بول رہے ہیں کہ when you get up for your prayer, before you start your prayer, then you wash your faces and your hands including your elbows. up to your elbows کا مطلب ہے, الی المرافق کا مطلب یہ ہے, خاص کر یہاں نام ڈالے کہ up to your elbows کا مطلب یہ ہے کہ including your elbows. تو اردو میں کہیں گے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ دھو لیا کریں اپنے چہروں کو, اپنے ہاتھوں کو اپنی کوہنیوں تک, elbows تک, اپنی کوہنیوں تک. اور پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, وَامْسَحُوا مسح یمسح مسحن یعنی وائپ کرنا, مسح جیسے ہم پیروں پہ وائپ کرتے ہیں موزے کے ساتھ, تو اس طرح وَامْسَحُوا and wipe your heads, میم سین ہا مسح کا لفظ ہے, اور رؤوسکم, برؤوسکم, رأسن سنگل ہیڈ کو کہتے ہیں, رؤوس یعنی پلورل. تو اپنے ہیڈز کو, وائپ یور ہیڈز, اپنے سروں کو آپ سروں کا مسح کر لیجئے. اور پھر آگے ایڈ ہوا ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ جب وائپ کیا ہوا ہے تو وائپ کہنے کا مطلب اس کے ساتھ بھی اپلائی ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ نہیں اپلائی ہو رہا ہے. یہ اپلائی ہو رہا ہے جب ایدیکم, اپنے, جب اللہ نے کہا تھا اپنے منہ دھو اور اپنے ہاتھ دھو, اور تیسری چیز کیا, اپنے پیروں کو دھو. إِلَى الْكَعْبَيْنِ, کعبین کیا چیز ہے, ہمارے اینکلس. تو اللہ تعالیٰ کہنے ہیں and wipe your heads and wash your feet up to your ankles یا including your ankles.
اور مسح کریں اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیں. یہ لفظ ضرور لکھیں دھو لیں ورنہ کنفیوژن یہی ہوگی کہ پیروں کو بھی مسح کرنا ہے. وداؤٹ دا موزہ دیر از نو مسح. اوکے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, ایگزیکٹلی یہی ہم نے پڑھا تھا لیکن پھر میں ریپیٹ کر رہی ہوں. اور and if you are in a state of purity, وَإِن كُنتُمْ, and if you are جُنُبًا in a state of impurity, فَطَّهَّرُوا, then you purify yourself. یہ بھی فعل الامر ہے. You have to, اگر آپ ناپاکی میں ہیں تو اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے. طَهَّرَ يُطَهِّرُ تَطْهِيرٌ فارم 2 ہے. اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں تو طہارت حاصل کریں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, and if you are sick, اور علی سفرین, مرضى ہم بھی کہتے ہیں مریض, یہ وہی چیز ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, and if you are sick, او علی سفرین, اور on a journey, یا آپ سفر پہ ہوں. اگر آپ بیمار ہیں یا آپ سفر پہ ہیں, او جاء احد منکم من الغائط, or has come any one of you, any one of you من الغائط, from the toilet, یا آیا ہو کوئی بھی آپ میں سے حاجت سے, ٹوائلٹ سے. اب ٹوائلٹ کو اردو میں کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا, تو ٹوائلٹ سے آیا ہو کوئی بھی, حاجت سے فارغ ہو کے آیا ہو, اپنی حاجت کر کے آیا ہو. او لامستم النساء, اور you had, لام میم سین کا مطلب ہے ٹو ٹچ, ایکچولی ٹو ہیو کانٹیکٹ ود. لیکن یہاں پر جب تمام اسکالرز اگریڈ ہیں کہ جب لمس یلمس لمسن جو ہے, لام میم سین جو ہے, جب یہ یوز ہو رہا ہے اس حال میں کہ نساء کا لفظ آ رہا ہے, کسی سے عورتوں کے ساتھ ٹچ کرنے کا آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ مینس سیکشل کانٹیکٹ ود them. تو او لامستم النساء, and if you, or you had contact, یا sexual contact or sexual relations with your wife, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً, and then you do not find any water, فَتَيَمَّمُوا, then do tayammum. یا میم یا پہلے کر چکے, تیمما یتمممو تیممن. ٹھیک ہے, یہ فارم 4 ہے. آپ دیکھیں, اور اگر آپ اپنی بیویوں سے صحبت کر کے آئے ہیں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر لیجئے. اور کس چیز سے کرنا ہے؟ سعیدن طیبن, with the earth which is pak, which is pure and clean. طیبن, pure and clean. فَامْسَحُوا, then wipe, وُجُوهِكُمْ, wipe your faces, وَأَيْدِيكُمْ, and your hands, مِنْهُ, with it. صرف فیس اور ہینڈس کا ہے with it. تو آپ مٹی سے پاک کر لیجئے اپنے چہروں کو, اپنے چہروں پہ پھیر لیجئے, اس کے اوپر مسح کر لیجئے, اور ہاتھوں کا اپنے اس سے مسح کر, فَامْسَحُوا, مسح کا لفظ لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, not intends Allah, Allah does not intend لیجعل, to make علیکم, for you or upon you, من حرج, any difficulty. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ ڈالے آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل, کوئی بھی تنگی. یہ دیکھیں, یہ اس کا پنچ لائن ہے. وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ, but rather کہہ لیں, but کہہ لیں, ولیکن ہوتا ہے actually rather, یرید لیطہرکم, he wills, he intends to purify you, لیکن وہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے وہ آپ کو. یہ پورا جو آپ نے اتنا کچھ پڑھا, وضو کریں, یہ کریں, نماز کے لیے تیمم کریں, سفر, ایوری تھنگ, جا کے اینڈ میں کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کرے اور آپ کے لیے پاک کرنے میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیوں پاک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, and to complete نعمتہ, his favor علیکم, upon you. یعنی وہ آپ کو پاک کرے, کیوں؟ تاکہ وہ اپنا فیور آپ کے اوپر, اپنی نعمت آپ کے اوپر پوری کریں. وَلِيُتِمَّ, تا میم میم, اتم یتم, اتمام, فارم 4 ہے. اتم یتم اتمام, فارم 4. وَلِيُتِمَّ, and to complete, یعنی تمام کرے, کمپلیٹ کرے, پوری کرے, نعمتہ, his favor, اپنی نعمت, علیکم, upon you, آپ کے اوپر, لعلکم تشکرون, so that you may be grateful, تاکہ آپ شکر کریں. اب اس پورے کا, اس میں کوئی مشکل بات نہیں تھی, لیکن پھر بھی ہم تفسیر میں جائیں گے, کیونکہ ہم ہر آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. جنہوں نے پہلے تیمم والا بھی نہیں سنا ہے ان کے لیے بھی یہ ہیلپ ہو جائے گا, اور جن کو وضو کا بھی نہیں پتا ان کے لیے بھی ہیلپ ہو جائے گا. الحمدللہ ہم سب کو وضو کے متعلق معلوم ہے. میں نے پوری کلاس بھی کی تھی آن پیوریفیکیشن اینڈ پریئر, امید ہے کہ آپ لوگوں نے وہ بھی سنی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو وضو کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے یا تیمم کے بارے میں, ٹوڈے از دا ٹائم کہ جب ہم کلاس ختم ہماری ہوگی انشاءاللہ, تو آپ اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو, کوئی بھی ہو, تو آج آپ پوچھ لیجئے. لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہے, تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام فیورز ہمارے اوپر ہیں.
تو अब जब हमने सूरह निसा में पढ़ा था, आपको मैं भी कहती कि हमने तयम्मुम का ये सिमिलर आयत थी, बहुत सिमिलर थी आयत, यही अल्फाज बहुत सारे थे कि जब आप खड़े हों और जुनूब हों और सब ये सब आके सफर पे हों, ये सब कुछ, लेकिन उसका जो है उसमें भी कुछ रूलिंग्स आई थी, तमाम रूलिंग्स समझे आ गई थी ऑफ द तयम्मुम। कौन सी आयत थी? आयत 43 थी सूरह निसा की। सो आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 43 में हमने ये पढ़ा था। उसमें जो अहकामात आए थे वो बेसिकली किस लिए आए थे कि जब आप नमाज पढ़ने खड़े हों तो आप पाकीज़गी इख्तियार करें, तहारा इख्तियार करें। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या था? आपको याद है कॉन्टेक्स्ट ये था कि स्टार्ट हुआ था इंटॉक्सिकेशन से, कि अगर आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, अगर आप नशे में हैं तो आप नमाज के करीब ना जाएं, आप नशे में हैं तो नमाज के करीब ना जाएं। और फिर उसके बाद था कि अगर आप जुनूब हैं, अगर आप जनाबत की हालत में, तो फिर आप अपने आप को प्योरीफाई करके जाएं। तब अल्लाह ताला ने उस वक्त हमें पहली दफा उस सूरह निसा में दिया द रूलिंग फॉर तयम्मुम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वुदू एंड गुस्ल, दोनों के लिए। और मैंने काफी डिटेल में तयम्मुम किससे होता है, किससे टूटता है, कब तक रहता है, कब कर सकते हैं, सब कुछ किया था। जो लोग नहीं अटेंड कर चुके थे 443 को सुन लीजिएगा इंशाल्लाह। यहाँ आया 6 में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, अहकाम तो वही है, वुदू का है, गुस्ल का है, तयम्मुम का है, लेकिन यहाँ बेसिकली पाकीज़गी है। और पाकीज़गी भी क्यों? कि अल्लाह हमें पाक करना चाहता है ताकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अब आपने देखा कि हमने आयत नंबर 4 और 5 में हमने अब जो कल और मतलब ट्यूसडे को और पिछले थर्सडे को जो कुछ भी पढ़ा था, अल्लाह ताला ने किस चीज को एम्फेसाइज किया? बार बार तय्यबात 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 आ रहा था। तय्यब का मतलब क्या है? प्योर एंड गुड एंड होलसम एंड एवरीथिंग, सब हम पढ़ चुके हैं। तो उस वक्त जो अल्लाह ताला ने हमें पाकीज़गी के बारे में बताया था, खाने के लिए बताया था, क्या चीज हलाल है, क्या चीज प्योर है, क्या चीज खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खाना है, क्या चीज हराम है, सब बताया था। और औरतों के बारे में भी बताया था कि आप किन मर्द जो हैं, हमारे मुसलमान मर्द, किन औरतों से शादी कर सकते हैं, उनका भी पाकीज़ा होना जरूरी था। ठीक है, चेस्ट होना, मुहसनात होना, और उनके साथ भी कोई ल्यूडनेस नहीं हो, उनके साथ भी कोई एडल्ट्री ना हो। ये सब चीजें आपने देखा कि ये सब चीजें हम पाकीज़ा पाकीज़ा पढ़ रहे थे। और अब इस आयत में, आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला बता रहे हैं पाकीज़गी फॉर प्योरिफिकेशन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रेयर। जब आप नमाज के लिए खड़े हो, उसका मतलब नहीं कि नमाज से पहले ही आपने वुजू करना और पहले से वुजू नहीं कर सकते। आपका वुजू अगर है, पहले से आपने सुबह वुजू किया था और थोड़ी देर बाद आपने फिर नमाज पढ़ना है, आपने जोहर के लिए वुजू किया और असर पढ़ना है, अगेन आपका वुजू है, यू डोंट नीड टू मेक योर वुजू अगेन। तो क्योंकि आप पानी जाया तो ना करें ना, तो आपका वुदू है। बाज लोग करते हैं, वो कहते हैं नहीं दोबारा से सवाब मिलता है, दोबारा गुनाह माफ होते हैं। तो बोथ थिंग्स देखें ना, या तो आप पानी जाया कर रहे होंगे तो वो भी नहीं अच्छा है, और अगर आपका वुजू है तो आप दोबारा क्यों कर रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो जब तक आप वुदू में इंशाल्लाह आपके गुनाह माफ होते रहेंगे। तो ये अब आप देखें आया नंबर 4, आया नंबर 3, 4, 5 सब में आप देखे थे, या 4 और 5 में था पाकीज़ा पाकीज़ा पाकीज़ा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बाय चांस नहीं है कि प्योरिफिकेशन एक के बाद दूसरे के पास तीसरे जफा, इसीलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। प्योरिफिकेशन इस ऑर्डर में अल्लाह ताला ने खुद रखी है, खुद रखी है। एक प्योरिफिकेशन, दूसरी, और अब तीसरी प्योरिफिकेशन आगे, इन ऑर्डर टू सर्व, नहीं हंटिंग की भी आई थी, इन ऑर्डर टू सर्व अ डेफिनेट पर्पस। और वो पर्पस क्या है? इट इज रिफरिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ प्योर एंड गुड थिंग्स, जो हमारी जिंदगी में, जो हमारी लाइफ में प्योर एंड गुड थिंग्स है। और ये कौन सा एस्पेक्ट है? ये हमारी रूह की प्योरिफिकेशन है। इट इज प्योर एंजॉयमेंट ऑफ द सोल, हमारी रूह की, हमारी स्पिरिट की, जो हमें रूहानी प्योरिफिकेशन है वो मिलती है। और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एंजॉयमेंट है वो किस चीज में आती है? प्योरिफिकेशन एंड प्रेयर। आप जब नमाज पे खड़े होते हैं तो आप सोच लें, मैं और आप, हमें जितनी एंजॉयमेंट उस नमाज में मिलती है, तमाम मटेरियल लग्जरीज ऑफ लाइफ जो है हमें वो खुशी नहीं दे सकती। हम वेट करते हैं कि नमाज पढ़ लें, जब नमाज पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है अब हमने अपना काम पूरा कर लिया। हम खाना खा लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि हमने खाना खा लिया, काम पूरा हो गया। खाना खा के लगता है अभी तो शायद चाय भी पियेंगे, मीठा भी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हम नमाज पे एक दफा स्टार्ट हो जाते हैं और जब हम नमाज खत्म करते हैं, उसके तमाम तस्बीह वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है हमारा सोल कितना प्योरीफाई हो गया। ठीक है, हमारी नमाजें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, हम लोग की फोकस, हम लोग का कंसंट्रेशन, हमारी खुशू जो है वो इतनी नहीं होती है, लेकिन हमें ये फील होता है कि वी मेट अल्लाह। It is a meeting with Allah and it is an atmosphere of purity. इस पाकीज़ा माहौल में हम अल्लाह से मिल रहे हैं, अल्लाह को की मीटिंग को हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमें होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमें करना चाहिए।
یہ جو انجوائمنٹ ہے جو کہ ہمارے لیے پیوریفیکیشن سے آ رہی ہے, جو کہ نماز سے آ رہی ہے, یہ انجوائمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس انجوائمنٹ کے بغیر ہم دنیا کو انجوائے نہیں کر سکے. ہم اچھا کھانا بھی کھا لیں, اچھی بیوی مل جائے, اچھا شوہر مل جائے, سب کچھ مل جائے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن جب نماز کی کمی ہوگی تو ہمیں وہ ریئل انجوائمنٹ ہمارے سول کو نہیں ملے گی. تو اس کے جو ریگولیشنز ہیں یا جو اس کی جو رولنگز ہیں, اس کے جو احکامات ہیں, تمام رولنگز کی طرح ہیں. یعنی کہ جب آپ ایک بھی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی سوللی فار دا پلیزر آف اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. اٹ شوڈ بی ڈیووشنل, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. میری نماز مجھے سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, میری نماز آپ کو دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے, میری نماز میرے شوہر کے یا میرے ماں باپ کے کہنے سے نہیں ہونی چاہیے, میری نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر یہ ہے, اور پھر اگر میں نے نماز کے لیے صرف اللہ کے لیے پڑھی اور سنت طریقے سے پڑھی, تو اس کی ایکسیپٹنس بھی اللہ کے پاس ہے. اور وہی کیوں ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اللہ نے 2 شرطیں رکھی ہیں, فار ہم اینڈ لائک دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں چیزیں ہم پوری کریں گے. تو اب دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا رولنگز, احکام, تو ہم کہتے ہیں او یہ تو عبادت ہے اور یہ تو دنیاوی کام ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا, ہر وقت ہم کہتے ہیں یہ حقوق اللہ ہے اور یہ حقوق العباد ہے. یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو ہم اللہ کا کام کریں جب ہم ورشپ کرتے ہیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم روزہ رکھتے ہیں. لیکن جب ہم انسان کے ساتھ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے. میں کیوں یہ یاد دلا رہی ہوں کہ جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی آیت, اس میں کیا تھا, عقود کا لفظ تھا کہ ہماری ٹرانزیکشنز, ہماری کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم جب کسی کو ایک چیز کہہ دیں, وہ زبان سے کہہ دیں, تو بس یا ہم نے ہاتھ سر ہلا دیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہ کریں گے, اٹ از آور کمٹمنٹ ٹو دیٹ پرسن اور دیٹ انسٹیٹیوشن اور دیٹ گورنمنٹ جو بھی ہے. تو یہ ڈویژن جو ہوئی ہے, حقوق, رولنگز آن ورشپ اینڈ رولنگز آن ہیومن ٹرانزیکشنز, مطلب ہمارے جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ جو اللہ کے ساتھ ڈیفرنٹ ہیں, اور وہ صرف کلاسیفیکیشن کے لیے ہیں. وہ اسکالرز نے اس لیے بنائے تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں کہ یہ ہمارے آپس میں دنیا والوں کے ساتھ ٹرانزیکشن ہے, بٹ الٹیمیٹلی دس از آور کمٹمنٹ ٹو اللہ. اور جب دونوں ایسپیکٹ ساتھ ہوں گے, دنیا حقوق, کوئی کہتا ہے نا حقوق اللہ زیادہ ضروری ہے, حقوق العباد ضروری نہیں, دیٹ از ٹوٹلی رانگ. حقوق اللہ کے اندر ہی حقوق, ہماری کمٹمنٹس اللہ کے ساتھ ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک ہی چیز ہے, سمجھ لیں. یہ صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم سمجھ لیں اس بات کو. ایک کیٹیگری دوسری کیٹیگری کے برابر فلفل نہیں ہو سکتی, ایک کمٹمنٹ دوسری کمٹمنٹ کے بغیر فلفل نہیں ہو سکتی. میں نمازیں پڑھتی رہوں اور میں آپ کو دھوکہ دیتی رہوں, کیا اللہ میری نماز قبول کرے گا؟ بالکل نہیں قبول کرے گا. تو اسی لیے آگے میں اور ڈیٹیل میں جانے کے بدلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ریگولیشنز ہیں, ابھی ہم جائیں گے ڈیٹیل میں, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کیا ہے اس سورہ کو, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, ہمارے یہ پارٹس آف کانٹریکٹ ہیں جس کو ہم نے فلفل کرنا ہے. ایکٹس آف ورشپ اور ایکٹس آف ہمارے جتنے بھی ہیں, یہ سب اللہ کے ساتھ ہماری ڈیوٹیز ہیں. اور اگر ہم کسی ایک کو بھی وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی کمٹمنٹ کو وائلیٹ کر رہے ہیں. چلیں اب نماز پہ واپس آتے ہیں کہ ہماری یہ میٹنگ ہے اللہ کے ساتھ, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کے لیے پراپرلی تیار ہو کے جائیں. ہم جب دنیاوی کسی چیز کے لیے جاتے ہیں تو کتنی فکر کرتے ہیں, کون سے کپڑے پہننے, میچنگ ہے نہیں میچنگ ہے, سب چیزیں. تو اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے آؤ تو آپ اپنی زینت کو اچھی طرح مطلب کل مسجد, جب بھی آپ کو مسجد میں جائیں گے تو آپ اپنے لیے اپنی زینت کو اچھا کر کے جائیں. مطلب ڈریس پراپرلی, بی ان یور پراپر اٹائر, اپنے لیے اسپرچل پریپریشن کر کے, فزیکل پریپریشن بھی کریں, اسپرچل پریپریشن بھی کریں, مطلب کہ آپ پوری طرح سے تیار ہو کے نماز کے لیے جائیں. اور یہ ریزن جو ہے, دیکھیں اگر ہماری یہ وضو نہیں ہوگا, ہمارا وضو نہیں ہوگا, ہمارا تیمم نہیں ہوگا, یا ہمارا غسل نہیں ہوگا, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو جائے گی, ہماری نماز نہیں ہوگی. اللہ قبول کرنے والے الگ بات ہے. یاد ہے اس پہ نورین نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم کس طرح لوگوں کو سمجھائیں, اسی کلاس میں کہا تھا کس طرح لوگوں کو سمجھائیں کہ وضو ٹھیک سے وہ نہیں کرتے ہیں تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی. دس از امپورٹنٹ, دس از واجب, دس از لازم کہ وی ڈو آر وضو. بٹ وہ بات یہ تھی کہ میں نے کہا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ہمیں طریقہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرح کریں. ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سمجھائیں. تو اگر ہم اس کا ریزن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اللہ اس کا ریزن خود انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وضو اور غسل یا تیمم کیوں لازم ہے, کیوں فرض ہے بیفور دا صلاح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہمیں ڈیٹیل میں بتایا, انہوں نے 3 چیزوں کے متعلق بتایا, واش آر فیس, واش آر ہینڈس,
पहला बताया हमें कि अपने मुंह, तीन 4 चीजें हैं ना, अपने मुंह को धोना नंबर 1, नंबर 2 अपने हाथों को धोना, कहाँ तक, एल्बोस तक, इंक्लूडिंग द एल्बोस, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कहा कि अपने सर का मसा करो, और चौथी चीज फिर बताई कि अपने फीट को धो, अपने पैरों को धो, इंक्लूडिंग द एंकल्स। ये तो आपने देखा कुरान में। अब आप मुझे कहेंगे तो फिर इसमें बाकी चीजें कहाँ से आ गई? ये जो हम कान का करते हैं और ये जो हम कुल्ली करते हैं और जो नाक में डालते हैं, ये चीजें कहाँ से आ गई? देखें, आपको बताया ना कि गाइडलाइंस कुरान में है, प्रिंसिपल्स कुरान में है, उनको इलेबोरेट करना, उनको तफसील से देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और बार बार कुरान में आता है कि जो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप उसको फॉलो करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से, जब से उन्होंने वुदू करना सहाबियों को सिखाया, देयर आर सो मेनी अहादीस, बुखारी, मुस्लिम, जिसमें भी आप कंपाइलेशन में देख लें, उसमें वुदू का सेक्शन है, प्योरिफिकेशन का सेक्शन है, और किसी में भी ये मिसिंग नहीं है। सुन्नियों के लिए बात कर रही हूँ, किसी में भी ये मिसिंग नहीं है कि हमने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो फ्रॉम द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट वी लर्न कि सबसे पहले अपने हाथों को धोना है वुदू के लिए, सबसे पहले अपने ये हाथों को, दोनों हाथों को धोना है, और अप टू द रिस्ट। इसके बाद, क्योंकि ये हमारी वॉशिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको हमने मुंह पे डालना है, इस मुंह भी इसी से साफ करना है। अब हाथ गंदे होंगे तो मुंह क्या साफ होगा? फिर हम सुन्ना से ये भी सीखते हैं कि जब मुंह को धोया जाता है, द फेस इंक्लूड्स putting your rinsing the mouth and putting the inhaling the water in your nose, अपने nostrils में। ये भी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से सीखा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि चूंकि ईयर्स जो हैं, these are part of the head, तो जब हम हेड को वाइप करते हैं तो उसके साथ हम ईयर्स को भी वाइप करते हैं, इस तरह डाल के और इस तरह पीछे से ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये पता है कि वुदू जो है, अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि अगर आप कहाँ से हैं, अगर आप टॉयलेट से आए हैं तो आपको वुदू करना जरूरी है। यानी आपने अपने कॉल ऑफ नेचर को जो है उसको आपने किया, या आपकी हवा निकली है, अगर हवा खारिज हुई तो उसके बाद भी हो सकता है बाथरूम ना गए हो। अब लोग कहेंगे कि नहीं, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें तो ये लिखा हुआ है कि आप बाथरूम से आए। अगर आप बाथरूम नहीं गए तो हवा तो किसी वक्त भी रिलीज हो सकती है। तो आपकी हवा रिलीज हो या आप बाथरूम गए हो, चाहे आपने नंबर 1 किया हो चाहे नंबर 2 किया, डजंट मैटर, आपको वापस आके गुसल करना, वुदू करना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट प्रेइंग। गुसल का है, अल्लाह ताला ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है, उन्होंने लफ्ज नहीं यूज किया सेक्सुअल सेक्सुअल उसका, लेकिन बड़ी अच्छी तरह बताया कि अगर आप, यू हैव टच्ड योर वुमेन, यू हैव कम इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद योर वुमेन, तो गुसल के लिए क्या चीज जरूरी है? गुसल कब जरूरी हो जाता है? जब सेरेमोनियल इम्प्योरिटी होती है, यानी या तो आपने अपनी बीवियों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, या आपकी इजैकुलेशन हुए आउट ऑफ अ वेट ड्रीम, चाहे आप सोए हुए वेट ड्रीम है, चाहे अवेक हो, लेकिन आपका इजैकुलेशन हुआ। और या तो जब औरतें अपनी मेंस्ट्रुएशन से फारिग होती हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होते हैं और वो नहाना होता है उनको जरूरी, और या पोस्ट नेटल ब्लीडिंग या पोस्टमार्टम ब्लीडिंग, जब बच्चा होता है और वो नफास की हालत होती है, उसके बाद नहाना जरूरी होता है बिफोर यू स्टार्ट प्रेइंग। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें यहाँ पर लिख दिया कि जब आप जुनूब की हालत में, और ये हमने एग्जैक्टली इसकी डिटेल में गए थे इन सूरह निसा जब हमने तयम्मुम के मुतालिक पढ़ा था। इसके बाद अल्लाह ताला कंसेशन बता रहे हैं कि किस सूरत में आप तयम्मुम कर सकते हैं, वो भी बता दिया क्लियरली, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि इस आयत में दोबारा है, जब पानी अवेलेबल ना हो वुदू के लिए, अगर पानी है, अगर नहीं, एक पानी अवेलेबल नहीं है या पानी इनफ नहीं है वुदू करने के लिए, या तो है ही नहीं पानी, और या तो फिर है तो बहुत थोड़ा है, वुदू नहीं हो सकेगा, या जब एक बंदा बीमार है, मरीद है, यानी उसको वुदू या गुस्ल की जरूरत है, लेकिन पानी जो है उसके लिए हार्मफुल है। याद रखें, अल्लाह ताला मुश्किल में नहीं डालना चाहता है। और या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं और वहां भी आपके लिए पानी की तकलीफ है, तो फिर आप वुदू या गुस्ल, आप प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में आपका टाइम हो गया, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आपके खत्म हो गए, तो आप क्या करेंगी वहां पर? आप गुस्ल तो नहीं कर सकती ना। तो वुदू इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुस्ल, तयम्मुम इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गुस्ल। तो आप अपनी नमाज तो नहीं मिस करेंगे, ट्रेन में है, प्लेन में है, जहां भी आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं। आप कहीं पहाड़ पे हाइक पे गए हुए हैं, वहां पर आप कहोगे वहां पर आपके पास पानी नहीं है, आपके पीरियड्स खत्म हो गए, तो आप क्या करेंगी? वहां भी आप तयम्मुम करके स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन पानी जैसे ही मयसर आ जाए तो फिर आपने गुस्ल कर लेना है।
So in any of these situations आप बगैर तयम्मुम के आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और अगेन तयम्मुम का पूरा तरीका बता दिया गया कि क्लियर सईदन तय्यबन, यानी कि क्लीन फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, सॉइल हो या जो भी चीज हो, मड हो, डस्ट हो, क्ले हो, वो सब चीजें जो भी हैं, अगर वो दीवार के ऊपर भी है तो ठीक है, डस्ट होना चाहिए दीवार पे, जहां इट्स फ्रॉम डस्ट, दीवार से नहीं होता, दीवार के ऊपर पेंट है तो पेंट से नहीं हम तयम्मुम कर सकते, तो इट हैज टू बी डस्ट। और फिर उसका वही है कि आप दोनों हाथों को उस पर स्ट्राइक करें, चाहे जमीन पे, चाहे सैंड पे, चाहे दीवार पे स्ट्राइक करें और अपने मुंह पे उसको फेर ले, मसा कर ले, लफ्ज मसा लिखा हुआ है, और फिर आप उसी को अपने हाथों पे भी फेर ले। इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इतना हाथ है या पूरा हाथ है, टू बी ऑन द सेफ साइड पूरा कर ले तो बस ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एक दफा स्ट्राइक करना है कि 2 दफा तयम्मुम के लिए। बाज स्कॉलर जी कहते हैं कि एक दफा स्ट्राइक करो, उससे मुंह भी मसा कर लो और हाथ पे भी मसा कर लो, इट्स डन। बाज स्कॉलर जी कहते हैं नहीं, एक दफा मुंह पे डालो और सेकंड टाइम फिर स्ट्राइक करो, और फिर अपने जो भी है, अल्लाह ने आसानी की है, क्योंकि अल्लाह ताला एंड में हमको ये कह रहे हैं इसी आयत में कि अल्लाह ताला आपके ऊपर कोई भी हार्डशिप नहीं डालना चाहते। अल्लाह ताला बगैर किसी हार्डशिप का आपको प्योरीफाई करना चाह रहे हैं। और अल्लाह ताला क्यों ये कह रहे हैं, वो क्यों ये कह रहे हैं कि बगैर किसी हार्डशिप की? क्योंकि जब हम तयम्मुम करते हैं, इज दैट अ कंप्लीट क्लेanलीनेस? क्या हमने साबुन लगाया, धोया, नहाया, कुछ भी नहीं किया हमने, तो फिजिकल क्लेanलीनेस नहीं होती है उसमें। तयम्मुम से क्या है, मिट्टी उठा के हम मुंह पे डाल रहे हैं, तो फिजिकल क्लेanलीनेस तो नहीं होती है। कंडीशन ये है कि स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन कम से कम हो जाए, तो इसीलिए इट इज इन सब्स्टिट्यूट कि आप तयम्मुम कर लें, बिकॉज द स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन इज फुलफिल्ड एंड दिस इज कंसिडर्ड सफिशिएंट। ये नहीं है कि आपके नहीं इसने तो तयम्मुम किया, इसकी नमाज ही नहीं होगी, नहीं, तयम्मुम अलाउड है। अल्लाह हमें बर्डन नहीं, ओवर बर्डन नहीं करना चाहता है, अल्लाह हमारे लिए डिफिकल्टी नहीं करना चाहता है, ताकि हम अपनी रिलीजियस ड्यूटीज को अच्छी तरह से मीट कर सकें, परफॉर्म कर सकें। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आप पे फेवर करना चाह रहा हूँ, ही वॉन्ट्स अस टू बी ब्लेस्ड विद द ग्रेस ऑफ प्योरिफिकेशन। फेवर क्या है? प्योरिफिकेशन। फिर क्या है, अल्लाह ताला ये भी चाह रहे हैं कि जब वो हमें प्योरीफाई कर रहे हैं, हमारे ऊपर अपना नेमत, अपना फजल, अपना करम करें, तो हम शुक्र अदा करें। लास्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं ताकि हम शुक्र अदा करें, और जब हम शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करता है, हमारी और जो फेवर्स अल्लाह ने हम पे दिए उनको इंक्रीज करता है, उनको मल्टीप्लाई करता है, अपना और ज्यादा फजल हम पे नाजिल फरमाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इस्लामिक कोड जो है लिविंग के लिए, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत नरमी से काम लिया, हमारे लिए बहुत जेंटली काम लिया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया। ये नहीं है कि हम बहाना कर लें कि हमने नमाज नहीं पढ़नी है, और लोग ये नहीं समझते हैं। लोग अभी भी ये कहते हैं कि हमें वुजू करने की, मैंने खुद सुना है, कहते हैं वुजू करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने सुबह नहाया था, हम अभी साफ हैं, हम पाक हैं। साफ होना अलग चीज है और पाक होना अलग चीज है। दिस इज सिंबॉलिक, दिस इज अ रिचुअल एंड दिस इज स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। आपको अगर आपने सुबह नहाया था, आपने अभी भी वुजू किया था, अगर 1 घंटे पहले भी किया था, लेकिन आपकी अगर हवा निकल गई तो फिर आप दोबारा से वुजू करना जरूरी है। वो कहते हैं वो पुराने जमाने के लिए था, जबकि अरब लोग जो है उनके पास पानी नहीं था और वो रेगुलरली बात नहीं लेते थे। हम तो रेगुलरली बात लेते हैं। अल्लाह ताला उनको भी गाइड करे और हमें भी गाइड करे कि हम अल्लाह के मैसेज को समझ सकें। तो इस पूरी आयत का एक शॉर्ट कंक्लूजन जो है, और पूरी पिछली भी 1-2 आयत का शॉर्ट कंक्लूजन मैं एक दफा रिपीट करती हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने लर्न इससे क्या किया। नंबर 1, अल्लाह प्योर है एंड अल्लाह सिर्फ प्योर को एक्सेप्ट करता है, और अल्लाह प्योर है, अल्लाह हमें भी प्योरीफाई करना चाहता है और हमारे सोल्स को भी प्योरीफाई करना चाहता है। अल्लाह ताला चाहता है कि वो हम पे अपनी नेमतें और अपनी फेवर्स और अपनी ब्लेसिंग्स, अपने फजल, अपने करम कंप्लीट करे। अल्लाह कहता है लियुतिम्मा, अल्लाह कहते हैं ताकि कंप्लीट करे, मुकम्मल तौर पे हमें करे। और फिर अल्लाह ताला अपने इस फजल को इंक्रीज करना चाहते हैं, और इंक्रीज करने के बाद वो ये चाहते हैं कि जब वो हमें क्यों ये सब बोल रहे हैं, क्यों हमें ये सब बोल रहे हैं कि हमारे करने से क्या होगा, क्या अल्लाह को कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम ये करें, और किस तरह से करें, अपने आप को फिजिकली और स्पिरिचुअली प्योर रखें, अपने इंटेंशंस को प्योर रखें और अपने एक्शंस को प्योर रखें, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दिस इज द जिस्ट ऑफ द होल आया। अब आगे पढ़ते हैं। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल लज़ी वसक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वज़कुरू एंड रिमेंबर एंड मेंशन, क्या चीज? निअमतल्लाहि अलैकुम, द फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन यू, द फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन यू, और आप याद करें अल्लाह की नेमतों को आपके ऊपर।
कौन सी नेमत अल्लाह ताला बताएंगे, आगे आएगा. व मीसाक़हु, एंड हिज कॉवेनेंट, जो आपने कॉवेनेंट लिया था, अल्लज़ी, that which वासक़कुम, he bound you with it. वासक़कुम यानी वही है मीसाक के भी वाव सा क़ाफ और वासक़ा फॉर्म डिफरेंट है. वासक़ा फ़अला का फॉर्म है. वासक़ा युवासिक़ु मवासक़तुन, वासक़ा युवासिक़ु मवासक़तुन फॉर्म 3. ठीक है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कॉवेनेंट जो है अल्लाह ताला ने, और वो फेवर जो अल्लाह ताला ने आप पे दिया, और जिस कॉवेनेंट से आपको बांध के रखा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसको याद करो. और क्या चीज है अल्लाह ताला बता रहे हैं, वइज़ क़ुल्तुम, when you said, इज़ क़ुल्तुम, when you said, समिअना व अतअना, we heard and we obeyed. समिअ यस्मउ समअन, तो ये आप सब पहले कर चुके हैं, और तो ये पहले भी कर चुके हैं, समिअना व अतअना, गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर, सब कर चुके हैं. तो ये जब अल्लाह ताला कह रहे हैं, उसका मतलब ये हमने किससे वादा ली, कमिटमेंट अल्लाह के साथ था, लेकिन वादा क्या हमने अल्लाह के साथ डायरेक्ट लिया था, समिअना व अतअना. ये वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने कहा था कि हमने सुना और हमने अताअत की. जब आपने कहा था हमने सुना और हमने अताअत की, तो अल्लाह कह रहे हैं सो बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, वत्तकुल्लाह, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह. इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है फियर अल्लाह, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें, अल्लाह से डरें कि आपने एक वादा किया है, आपने कहा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन रहे हैं और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप अताना, आप ओबे कर रहे हैं. और अल्लाह ताला एंड में वार्निंग दे रहे हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंडीड अल्लाह, इज अलीमुम, इज ऑल नोइंग ऑफ बिज़ाति सुदूर, ऑफ व्हाटएवर इज इन योर बेस्ट, इन द ब्रेस्ट. यानी कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला है जो कि सीनों में है. बिज़ाति सुदूर यानी सीनों के अंदर जो है, हमारे पास सीनों वाली बात इसको कहते हैं. अल्लाह को सब मालूम है कि किसके सीने में क्या है. अब यही है कि जो फेवर है वो कौन सा फेवर है, तफसीर में आके देखते हैं कि फेवर कौन सा है. वो जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि रिमेंबर, अल्लाह ने आपके ऊपर फेवर किया था और आपके साथ कॉवेनेंट लिया था. वो फेवर कौन सा है? वो फेवर ये कि अल्लाह ताला ने जो सीधा रास्ता, अल्लाह ने कहा मैं बताऊंगा आपको. आपको याद है हमने पढ़ा था कि जब थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था कि अल्लाह ताला कहते हैं जब लोग सीधे रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, बट जब कोई फिर जाता है, कोई भटक जाता है, तो अल्लाह ताला लेट्स हिम गो एस्ट्रे. वो दल्लम दलालम बैदा हो जाते हैं, बिल्कुल, तो वो दूर चला जाता है. तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को सीधा रास्ते के लिए जो फेवर दिया था, और बिलीवर्स को, मुसलमानों को, आपको पता है ना, पहले जूस के पास लीडरशिप थी, फिर अल्लाह ताला ने वो लीडरशिप जो एंटायर वर्ल्ड की थी, जूस के पास थी, उसको उठा के, यानी कि उन तमाम जो पैगंबर आए, वो जो जूस में आए, जो कि वहां पर आए, वो तमाम मुसलमान थे, वो तमाम पैगंबर, लेकिन चूंकि वो अरबों में नहीं आए थे, इसीलिए जब अरबों में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अरब में पैदा हुए, अरब में बड़े हुए, तो जूस ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जिस तरह बनी इसराइल वहां पर थी और तमाम पैगंबर आते जा रहे थे, रसूल आते चले जा रहे थे, तो ये अल्लाह ताला ने जो लीडरशिप रोल है वो उनके पास से हटा के मुसलमानों को दे दिया था. और फिर उनका टास्क ये था कि जिन्होंने ये अपना कॉवेनेंट लिया है अल्लाह के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया समिअना व अताना, उसका मतलब ये हम आपको सुनेंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लॉज पर हम चलेंगे. We will implement his laws, we will follow the messenger, and we will convey this message to others. अब हमारी जिम्मेदारी यही है ना कि हम खुद भी अमल करें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने, तमाम पैगंबरों में विदाउट एनी डिस्टिंक्शन माने, और फिर उसके बाद हम लॉज को इम्प्लीमेंट करें जो कुरानिक लॉज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें समझाई, और फिर उसके बाद हम इस मैसेज को कन्वे करें अपने अपने जहां तक कर सकते हैं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, और अगर हो सके तो बाकी लोगों को भी. तो जो सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते हैं ना कि जो बेस्ट जनरेशन कौन सी थी, सहाबियों की जनरेशन, माय जनरेशन. और उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद फिर उससे कम, द नेक्स्ट बेस्ट, यानी कम होते गए. तो वो जो जनरेशन थी उनको पता था कि वो फर्स्ट जनरेशन है जिसके सामने कुरान रिवील हुआ. जब कुरान रिवील हुआ उनको एग्जैक्टली पता था कि अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स की हैं उनके ऊपर, जो फेवर किया उनके ऊपर, ये बहुत बड़ा फेवर है. बाय रिवीलिंग दिस कुरान, बाय रिवीलिंग दिस Islam, this religion, and by sending the Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, उनके अंदर वो चेंजेस आ गई.
they felt the changes themselves in their own lives, in the community, और जो पोजीशन उन्होंने ऑक्यूपाई किया था among the mankind, पूरी इंसानियत में उनको जो लीडरशिप रोल मिला, और फिर उन्होंने, वही सहाबा थे जिन्होंने आगे मैसेज को कन्वे किया, और उससे आगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन हमें ये मैसेज मिल रहे हैं। अब ये वुदू का तरीका अभी हमने सीखा, तो ये कैसे हमें पता चला? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने नहीं है, लेकिन इसी तरह कन्वे होते होते तो अल्लाह ताला रिमाइंड करा रहे कि ये ब्लेसिंग जो है सहाबा के लिए तो इनफ था कि वो लोग अपनी जहां से भी गलत जाते थे, कुछ भी होने जाते थे, वो वापस इस मैसेज को सुन के वो वापस आ जाते थे कि ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस रास्ते से कहीं भी ना हटे, क्योंकि शैतान हमेशा सीधे रास्ते पर ही बैठेगा। शैतान कभी भी उस रास्ते पे नहीं बैठेगा जिस पे लोग भटके हुए हैं। वो कहते हैं मैं उस रास्ते पे बैठता हूँ जो सिरात मुस्तकीम हो, ताकि मैं लोगों को राइट से, लेफ्ट से, ऊपर से, नीचे से, बैक से, आगे से, हर तरफ से उनको बरगलाऊं, उनको डेविएट करूं। तो सिमिलरली एक रेफरेंस ऑफ द कॉवेनेंट है, जो कि कॉवेनेंट का है, वो भी अल्लाह ताला के यही है कि हमने हमारे अंदर जब ये जो कॉवेनेंट आता है कि अल्लाह ताला से हमने एक मीसाक अल्लाह ने हमसे लिया हुआ है, हमारा अल्लाह ताला के साथ एक वादा है। जब ये सहाबा सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे कि अल्लाह के साथ हमारा वादा है, वो थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन उनको पता था कि ये वादा अल्लाह के साथ है। उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिग्निटी होती थी कि हम अल्लाह के साथ हमारा ये वादा है। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वादा देते थे तो उनके जहन में यही होता था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हमने फुलफिल करना है और हमने अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। तो मुझे और आपको भी ये रिमाइंडर्स बहुत जरूरी हैं कि हम अल्लाह के फेवर्स पे कॉन्टेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें, और हम अपने आप को रिमाइंड करें कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है टू फॉलो द सुन्ना इज टू ओबे अल्लाह। तो हमें अल्लाह का तकवा इख्तियार करना है। अल्लाह हमें बार बार रिमाइंड भी कराता रहता है कि भाई आई हैव फुल नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव इन योर, अपने बिजाते सुदूर, यानी जो कि हर वक्त आपके, बिजाते सुदूर का मतलब यह है कि लुग़वी मानिए कि जो कि आपके दिल में हर वक्त मौजूद रहता है, विच इज कंटेन्ड इन योर हार्ट्स, विच इज कंटेन्ड इन योर ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के अंदर तो नहीं था, हार्ट के अंदर ही होता है, लेकिन लफ्ज सुदूर यूज होता है, विच इज कंटेन्ड, क्योंकि हार्ट भी है, ब्रेस्ट के अंदर है ना, कंटेन्ड है, प्रोटेक्टेड है। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन योर हार्ट, ऑलवेज प्रेजेंट इन योर हार्ट, चाहे आप कितना भी सोचेंगे ये सीक्रेट है, मुझे वो सब मालूम है। तो अल्लाह ताला जो है, हम कितनी भी उसको बैरी करके रखें, कितना भी उसको छुपा के रखें, अल्लाह ताला को मालूम है कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे सीनों में क्या है। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अगेन आपने एक आयत इस तरह की पढ़ी थी, बहुत सिमिलर थी, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में वो चीजें बार बार रिपीट करते रहते। क्यों? कि हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, इंसान का मतलब ये जो फॉरगेट करता है, तो हम फॉरगेट करते रहते हैं और हम उन चीजों को रिपीट करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुझे और आपको अल्लाह कह रहे हैं, ओ यू दोज़ हू बिलीव, ए लोगों जो ईमान लाए हो, कूनू, कूनू का मतलब है वही कामा यकूमू से कि आप नहीं, कूनू कव्वामीना, कूनू यानी बिकम, काना यकूनु से, कामा यकूनु से नहीं, कूनू है, मैं कूमू कह रही थी, कूनू उसका मतलब है काना यकूनु कौनन, कि आप स्टेड फास्ट हो जाए, कव्वामीन हो जाए, आप खड़े हो जाए, आप स्टैंड हो जाए, आप खड़े हो जाए। किस चीज के लिए? लिल्लाही, अल्लाह के लिए, शुहदा एज विटनेस, शुहदा यानी इस वक्त विटनेस का मतलब है, और बिलकिस्त यानी विद justice, become steadfast, stand up for Allah as witnesses with justice, यानी आप हो जाएं, आप बन जाएं, खूब कायम हो जाएं, कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले हो जाएं और गवाही देने वाले हो जाएं। किस चीज के साथ? जस्टिस के साथ, यानी इंसाफ के साथ आप अल्लाह के लिए खड़े हो जाइए। और फिर अल्लाह ताला, वो ही पहले भी अल्लाह ने बताया था, ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, and let not prevent you शनआनु, your hatred या your animosity, your enmity, यानी कौमिन for a people, for a कौम, अला अल्लाह upon अल्लाह तादिलू, that you do not do justice, यानी किसी कौम की hatred, किसी कौम की दुश्मनी, दोबारा ये रिपीट करती हूँ, and do not let prevent your hatred, your enmity, your animosity of any people that upon that you do not do justice। तो उर्दू में है, और ना रोके आपको आपकी दुश्मनी, आपकी नफरत किसी भी कौम से, किसी भी लोगों से, इस पर कि आप अदल ना करें।
اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو آپ پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ عدل کرنا. اینڈ وی ڈیڈ اٹ ان کوائٹ ڈیٹیل لاسٹ ٹائم. اللہ کہہ رہے اعدلوا، بی فیئر، بی جسٹ، آپ عدل سے کام لے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، it is closer, it is nearer to what? to taqwa. It is closer and nearer to Allah consciousness. یعنی آپ عدل کریں وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے. واتقوا اللہ and be conscious of Allah. Fear Allah. اللہ کے کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں. ان اللہ خبیر بما تعملون. Indeed Allah is خبیر. Allah is all aware of بما of what تعملون of what you do. جو کچھ بھی آپ عمل کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو آپ عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے کافی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھ لی تھا سورہ نساء میں، لیکن ریمائنڈر صرف یہ کہ we must always stand up for justice and we must always deal with others based on absolute justice. یاد رکھیں ہم نے ڈاما ڈول نہیں ہونا ہے، ایک طرف انکلائن نہیں کرنا ہے، دوسری طرف انکلائن نہیں کرنا ہے، no matter what and for whoever it may be. ہم نے پڑھا تھا نا کہ چاہے آپ کے والدین ہو، چاہے اقربین ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، یہ ہم نے سارا پڑھا تھا. اس سب کے لیے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا. تو اس کو آپ دوبارہ سے سن لیجئے کہ کسی حالت میں بھی آپ کا دل جو ہے وہ ٹیمپٹ نہ کرے، للچائے نہیں، آپ کو انفلوئنس نہ کرے کسی بھی صورت میں کہ آپ اپنے بیلنس آف جسٹس کو جو ہے ایک طرف جھکا دیں، انکلائن کر دیں، جھکا دیں، ایک طرف جھک جائیں. وہ ہمیں اجازت نہیں ہے. ایون اگر ہماری کسی سے دشمنی ہے، ایون ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ کووننٹ ہے. It is a part of again آ گیا وہی فرسٹ سینٹینس آ گئی، فرسٹ آیت آ گئی ہماری سورہ مائدہ کی کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے عقد پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے عقود کو پورے کریں. یہ ہماری it is part of our duty to remain steadfast in our devotion to Allah. It may be difficult. Sometimes it is difficult. Most of the times it is difficult. آپ اپنے اگینسٹ وٹنسنگ کریں یا آپ اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں، اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ، لیکن ہمارے پر بائنڈنگ ہے. It may be difficult but it is binding. یہ یاد رکھنا ہے ہر چیز میں. اور بچوں کے لیے، خاص کر بچوں کے لیے، لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ لوگوں کو نہیں بولا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے، میں ماں باپ کا ذکر کیا تھا، اقربین کا کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ بچوں کا میں نے نہیں کہا تھا، لیکن اگر ہم بچوں کے درمیان، اپنے بچوں کے درمیان بھی اگر ہم فیورٹزم کرتے ہیں، کسی ایک بچے کے زیادہ فیور کرتے ہیں، اٹ از اے کائنڈ آف انجسٹس. اور یہ میں نے آپ کو شاید پہلے حدیث بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی، I'll just repeat it ہماری ریفریشنگ کے لیے، ہمیں یاد رکھنے کے لیے، کہ نعمان ابن بشیر نے کہا تھا کہ میرے ابا نے مجھے گفٹ دیا تھا، اپنے مال میں سے، اپنے ویلتھ میں سے گفٹ دی تھی. اب اس کے 3-4 بلکہ زیادہ اس کے نیریشنز ہیں الگ الگ کیا گفٹ دیا تھا. لیکن میری امی نے کہا، نعمان ابن بشیر کہنے، میری امی نے کہا، امرہ بنت رواحہ، انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپروو نہیں کروں گا، نہیں کروں گی. اپنے مطلب باپ، ان کا ہسبینڈ دے رہا ہے بچوں کو، لیکن بیوی کہہ رہی کہ میں اپروو نہیں کروں گی until you ask the messenger of Allah کہ وہ اس کو وٹنس کریں. دیکھیں بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ جو میاں کہتے ہیں بس اس کو بغیر سوچے سمجھے مان لو، بغیر سوچے سمجھے مان لو. یہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک بچے کو دیا ہے، میاں دے رہا ہے، اپنا ہسبینڈ دے رہا ہے، ہی از دا قوام، سب کچھ ہے، لیکن اس کا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ انجسٹس ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ اس کو وٹنس کریں. اگر وہ وٹنس کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا، اگر وہ اس کو نہیں وٹنس کریں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. سمپلی انہوں نے کہا I will not approve of it. بیوی نے اپروو نہیں کیا جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہیں کہ وہ اس کو وٹنس کریں. پھر وہ بتا رہے ہیں، نعمان ابن بشیر کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ اس گفٹ کو وٹنس کریں، یو بیئر وٹنس کہ میں یہ تحفہ اپنے بچے کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، نعمان کو دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے یہ تحفہ باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ Have you done the same for all your children؟ انہوں نے کہا نو. تو انہوں نے کہا تو پھر fear Allah and treat your children justly. اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں اور اپنے بچوں کو justly ٹریٹ کریں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وٹنس نہیں کیا. تو وہ بتا رہے ہیں، نعمان ابن بشیر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ واپس آئے اور انہوں نے مجھ سے وہ گفٹ لے لیا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ہے ورڈنگز. آپ کو پتہ ہے کہ جب صحابہ سنتے تھے اور جب وہ کنوے کرتے تھے تو اس میں تھوڑی تھوڑی سے ڈفرینٹ آ جاتا تھا. لیکن ونس اگین آپ دیکھیں بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ہے، متفق علیہ ہے. اس کا مطلب یہ اٹس اے ویری اسٹرانگ حدیث کہ ہم اپنے بچوں کے درمیان تفریق نہ کریں، بچوں میں فیورٹزم نہ کریں. لو کی بات الگ ہے. کسی دیکھیں میں اپنے جسٹ سمپل آپ لوگوں کو بتا رہی تھی
کہ میں تھوڑا سا ٹینجنٹ پہ جا رہی ہوں, کہ جیسے ابھی میرا جو سب سے بڑا پوتا ہے ابراہیم, ٹھیک ہے نا, وہ الحمدللہ وہ نماز پڑھاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تراویح پہ جاتے ہیں, مسجدوں میں پڑھاتا ہے, ہر چیز پہ ہم مطلب ہم کچھ سال سے اس کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں. تو جب تراویح پڑھتے ہیں تو اپنا دل خوش ہوتا ہے, اپنے اس بچے پہ زیادہ پیار آتا ہے بنسبت باقی سب اپنے پیارے ہیں, سب بچے, لیکن جب اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو ایسے لگتا ہے اس کو جا کے حق کرتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں. اب بچوں نے کہنا شروع کر دیا, میرے بیٹے نے بھی کہنا شروع کر دیا ابراہیم آپ کا فیوریٹ ہے. میں نے کہا میرا فیوریٹ نہیں ہے, میرے سب میرے فیوریٹ ہیں, لیکن جب اس وقت کوئی کچھ کرتا ہے تو اس وقت پھر اس سے ظاہر ہے اس وقت کے لیے ٹیمپریریلی آپ کا لو اس کے لیے اور زیادہ ہو جاتا ہے. لو تو سب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹا پوتا جو ہے یوسف آیا, بھاگا, بھائی دادی ممی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ چاہ رہی ہیں کہ میں یہ کروں, آپ کا کوئی کام ہے جو میں کر دوں تاکہ پھر میں آپ کا فیوریٹ بن جاؤں. تو میں نے کہا بیٹا آپ ویسے ہی میرے فیوریٹ ہو, کوئی بات نہیں, سب میرے فیوریٹ ہیں. اور کوئی, کیونکہ بچوں کے دلوں میں یہ بات رہ نہ جائے. وہ تو ہنستے ہنستے آیا, مجھے کہہ رہا تھا بیکاز الحمدللہ گھر میں ایسا ماحول ہے کہ بچوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ فیوریٹزم نہیں کرتے ہیں. یہ تو میرا بیٹا تنگ کرتا ہے لیکن میں نہیں کرتی. تو اگین اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ہے, جو بذات صدور ہے, اس کو اللہ ہی جانتا ہے, اس کو اور کوئی نہیں جان سکتا, نہ ہماری اولاد, نہ ہمارے پیرنٹس, کوئی نہیں جان سکتا, ہمارے شوہر, کسی کو نہیں پتا چلے گا. جو ہمارے دل میں وہ اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں آیا نمبر, ٹائم تو ہے نا, آیا نمبر 9, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وعد اللہ, وعدہ کا کیا مطلب ہے؟ وعدہ کیا ہے اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے الذین, ان لوگوں سے, to those who, یا with those who آمنوا وعملوا الصالحات, who believe and perform righteous deeds. اب belief کا مطلب صرف اللہ پہ نہیں, پوری اسلامک belief system ہے. اللہ has promised to those who believe and perform righteous deeds, وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں صالح, بلکہ پاسٹ ٹینس ہے نا, آمن و عامل الصالح, جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے, پاسٹ ٹینس ہے, آمن و عامل, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے صالح, لہم, for them is مغفرہ, for them is forgiveness, وَأَجْرٌ عظیم, and a reward which is عظیم, which is great, which is magnificent. تو اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھ ہی آیت نمبر 10 میں, بیکاز اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب ایک کسی نیک کام کی بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ کنٹراسٹ بھی بتاتے ہیں موسٹلی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, but those who disbelieve, یا those who deny, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, and they deny our signs. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, but those who disbelieve and they deny our signs, جو ہماری آیتوں کو, ہماری سائنس کو جو کہ ڈسبلیو کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, جنہوں نے کفر کیا یا جھٹلایا, کذبوا یعنی جھٹلایا, انکار کیا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب الجحیم, those are یعنی those are the ones, اسپیشلی آپ کو بتایا نا کہ ہمیں شیخ زاہد جس طرح پڑھاتے ہیں وہی کہتے ہیں those are the ones, وہی ہیں, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے اولئک اصحاب الجحیم, they are the companions, یا they are the dwellers of the الجحیم, یعنی دوزخ کا ایک نام ہے لیکن اس کا نام کیوں پڑا؟ جہیم کا مطلب ہے blazing flame, یعنی کہ شعلے والی آگ. تو وہی لوگ ہیں جہنم والے ہیں, اور یعنی وہی شعلے والی آگ میں, بلیزنگ فلیم میں ہوں گے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے ڈس بلیو کیا اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا ڈینائی کیا. تو جب اللہ ایک پرومس کرتا ہے, اللہ کہتا ہے وعد اللہ, یعنی اللہ کا پرومس ہے. اب کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا؟ میں اور آپ تو جھوٹے وعدے کر سکتے ہیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ جھوٹا وعدہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو when Allah makes a promise, آپ یاد رکھیں, it can never fail. It has to be fulfilled. It will be fulfilled. وہ ہو کر رہے گا, کچھ بھی ہوگا وہ ہو کر رہے گا. اور جب یہ پرومس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ میں اور آپ تمام بلیورز, ہم لوگ انکریج ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر اپنی obbligations پوری کریں, ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال اگر صحیح ہیں. کل بھی میری ایک دوست ہے, وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کبھی کبھی تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی کہ ہمارا ایمان اور اسلام میں کیا ڈفرنس ہے. تو میں نے کہا ایمان وہ ہے جو ہماری بلیفس ہیں, اور اسلام وہ ہے جو ہمارے اعمال ہیں. تو ایمان میں آپ نے سب پڑھا ہوا ہے کہ ایمان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں ہمارے سے. ایمان باللہ, بالملائکۃ, اللہ کے رسول, اللہ کی بکس, اور قیامت کا دن, اینڈ یوم آخر, اینڈ دین قضا و قدر, ٹھیک ہے. اور اسلام میں کیا آتا ہے کہ ہمارا
हमारा अमल करना तौहीद पे, कलमा तौहीद पे, फिर उसके बाद हमारा है तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब है। तो इसीलिए अगर हम ईमान भी ला रहे हैं और हम अपने अमाल भी पूरे कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा ईमान लाते हैं, अमल पूरा नहीं करते हैं, और अक्सर लोगों के साथ ये है, ईमान तो है हमारा, हमने कलमा पढ़ लिया है, हम बख्शे जाएंगे, अल्लाह हमें माफ कर देगा, अल्लाह गफूर रहीम है, बट वाई? अगर आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की बात नहीं सुन रहे, अल्लाह की ओबीडियंस नहीं कर रहे हैं, अताअत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अल्लाह ताला साफ साफ कह रहे हैं कि जो हमारी आयतों को डिनाई करेगा यानी जो अमल नहीं करेगा, एक तो डिनाई कर रहा है वो अलग बात है, और फिर अमल भी नहीं करेगा, तो अमल करने में फिर भी एक थोड़ी सी गुंजाइश, मेरे टीचर ने सिखाई थी कि गुंजाइश होती है कि हमारे अमाल कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, कभी हम कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, लेकिन ईमान तो हमारा स्टेडफास्ट होना चाहिए। तो इसीलिए जो ट्रू बिलीवर्स हैं, जो ईमान और अमल दोनों में सही है, अल्लाह ने उनके लिए बहुत रिवॉर्ड रखा हुआ है, और ही मस्ट, वरना फिर क्या होगा? अल्लाह ताला क्या इनजस्टिस करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला हैज टू रिवॉर्ड देम, एंड अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड। तो ये जो प्रॉमिस है ना, ये हमारी तमाम दुनिया में जो भी तकलीफ हो रही है, कभी कभी देखें वुजू करने में ठंडा पानी होता है और हमारे पास पानी गर्म नहीं होता, हम क्या करते हैं? डू वी प्रे और वी डोंट प्रे? वी डू प्रे। कभी कभी हमारे रोजे में भी तकलीफ हो रही होती है, हम रोजा रख रहे होते हैं कि नहीं रख रहे होते हैं, हज में तकलीफें आती हैं, हर चीज में, ज़कात में इंसान का दिल होता है मेरे पैसे चले जा रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमें, हमारी हार्डशिप्स हैं, ये नहीं कि बहुत आसान है, सब्र की भी जरूरत है, हिम्मत की भी जरूरत है, हौसले की जरूरत है, लेकिन जब हमें ये प्रॉमिस का ख्याल है तो वाद अल्लाह ने प्रॉमिस किया, तो हमारी तमाम हार्डशिप्स जो है दे शुड बिकम इनसिग्निफिकेंट। तो क्या हुआ? अगर ये हुआ तो क्या हुआ? अल्लाह ने प्रॉमिस किया हुआ है, और फिर अल्लाह ताला जब प्रॉमिस करता है और हम इस पे चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जितनी भी टेम्पटेशंस हैं, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स रास्ते में आ रहे हैं, जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, अल्लाह ताला वो भी आसान कर देता है। अल्लाह ताला कहता है ना, मेरी तरफ तुम चल के आओ, मैं दौड़ के आऊंगा। तो हमें सिर्फ अपने आप को शुरू करना है, उस रास्ते पे गामजन हो जाना है। We have to start that safar to improve ourselves and to become better Muslims. और इससे हमें ये भी होता है कि हमें रीअश्योरेंस मिल जाती है कि अल्लाह ताला जो है वो हमें इनेबल करेंगे कि जितने भी हमारे अगेंस्ट लोग कोई भी स्कीम्स ब्लॉट कर रहे हैं, हम, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना कि आप जस्टली डील करो, हमें कहा जा रहा है कि इंसाफ से करो। इवन अगर हम किसी की हेट्रेड है, अगर हमें किसी की एनिमोसिटी है, वो भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने यही कहा, जब आप ये सारे काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए सब कुछ आसान कर देगा, और हमारे लिए अजर अजीम है। और फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो डिसबिलीव करते हैं उनके लिए क्या? उनके लिए ब्लेजिंग फायर है। अल्लाह ताला हमें ब्लेजिंग फायर से बचाए, क्योंकि ये सिर्फ फेयर है कि जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो ईमान ला रहे हैं, जो अपने आप को तकलीफों में डाल रहे हैं, जो अल्लाह की अताअत कर रहे हैं, अल्लाह ताला क्या उनके लिए जो ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए भी रखे जो ईमान नहीं ला रहे, जो जुल्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जुल्म करते फिर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो कि डिनाई कर रहे हैं अल्लाह की आयतों को। तो इसीलिए अगर अल्लाह ताला ये करेंगे, अल्लाह ताला ये नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की डिवाइन जस्टिस है कि सेम ट्रीटमेंट कैन नॉट बी गिवन टू द बिलीवर्स एंड द डिसबिलीवर्स। ये हमें पता है। हम लोग कहते हैं अक्सर कि हो सकता है अल्लाह उन्हें माफ कर दे, क्योंकि हमारा दिल नरम है, हम मुसलमान हैं, हम ये सोचते हैं। लेकिन नहीं, वो लोग जो डिसबिलीव कर रहे हैं, दे शुड बी रेडी। अल्लाह उनको बार बार बोल रहा है, उलाइका अस्हाबुल जहीम, दे आर द पीपल हु डिनाई अल्लाह's आयात, who don't believe in Allah, या who believe या who do shirk, उनका क्या होगा? they will be burnt in the blazing fire। अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करे, अल्लाह हमें महफूज रखे ब्लेजिंग फायर से, अल्लाह की पनिशमेंट से। लेट्स स्टॉप हियर, ताकि क्यों फिर आपका जो वुदू, तयम्मुम, गुस्ल और जो भी क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। जी, कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि कितनी नमाजें हम एक वजू से पढ़ सकते हैं? जितनी भी, जब तक आपका वजू टूटे नहीं। वजू किस चीज से टूटता है? इन चीजों से और सोने से। अगर आपको नींद आ गई, अगर आप फजर पे आपने, समझिए फजर पे आपने वजू कर लिया और आप बाथरूम नहीं गई और आपकी हवा नहीं निकली और आप सोई भी नहीं, तो आपका, आप सब इशा तक भी कंटिन्यू। अब सर्दी के दिन है, कोई लोग कहते हैं हमारे तो फजर की वजू से हम इशा भी पढ़ते हैं। हाँ, हमारे लिए आसान है, हम जोहर से इशा पढ़ लें, लेकिन फजर से तो बहुत मुश्किल है। क्यों, कोई आपको किसी ने बताया कि कोई एक लिमिट है? मैंने सुना था 3 नमाजें पढ़ सकते। बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी सुन लें, वेरिफिकेशन कर लें। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये देखे ना, कुरान कितना क्लियर है, जब तक इन चीजों में से कुछ ना हो जाए। इसीलिए एग्जॉस्टिव लिस्ट होती है। किसी ने ये भी पूछा मुझसे, अगर हम किसी को देख लें, किसी ने कहा, मेरी दोस्त ने पूछा, सर पर से दुपट्टा उतर जाए, तो सर पर से दुपट्टा हैज नथिंग टू डू विद योर वुदू।
It's got to do with your iman and your amal separately. बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल सर पे दुपट्टा उतरने से भी आपका वुदू नहीं टूटता है, लेकिन नमाज पढ़ते वक्त सर पे कवर करना ही है। आप अगर पर्दा नहीं भी करती हैं, समझिए डिसोबे कर रही हैं, तो भी आप जब नमाज पढ़ेंगी तो आपको कवर करना, वरना नमाज नहीं होगी। सिर्फ सिंपल ये बात है। अब किसी और ने पूछा कि अगर मैं अस्तगफिरुल्लाह के किसी को, अब बीच पे जाते हैं, बीच पे जाएंगे और बीच पे वहां पर लोग आधे नंगे पूरे नंगे पड़े हुए होते हैं, तो क्या उससे हमारा वुजू टूट जाता है? क्यों टूटेगा वुजू? अगर आपके सामने वो आ गया, वो आपके सामने से गुजर गया, तो क्या होगा? आपका वुजू क्यों टूटेगा? नहीं टूटता है वुजू किसी को देख लेने से। सही। अच्छा, दूसरे एक और सवाल कर सकती हूँ कि ये ईशा की नमाज के लिए है ना, कि नमाज तो अव्वल वक्त में पढ़ने का है ही कि पढ़ी जाए, लेकिन ईशा की नमाज मैं खुद कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिले करूँ के पढ़ूँ ताकि बावजूद सोऊं। तो ये जरूरी, ये बेहतर है कि अव्वल वक्त में पढ़ के फारिग हो जाए? इशा के लिए इज अ डिफरेंट रूलिंग। इशा के लिए ये है कि अगर आप देर से पढ़ें वो बेहतर है, जितनी देर से पढ़ें बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा इशा की नमाज पढ़ी थी एट मिडनाइट, जस्ट क्लोज टू मिडनाइट। तमाम सहाबा वेट कर रहे थे और फिर वो नहीं आ रहे थे, और बाद में वो आए, तो फिर इन्होंने कहा कि ये इतना रेंज है टाइम का, जब रेंज है, आपकी नमाज का वक्त है, आप पढ़े। बाकी नमाजें भी अव्वल वक्त में आप पढ़ें, इट इज बेटर, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ लेट हो जाए, कोई काहली आ जाए, सुस्ती आ जाए। बट अगर आपने टाइम से पहले पढ़ लिया, समझिए अभी अगर आपका टाइम है आज असर का टाइम अगर आपका 2:24 पे है समझिए, और आपने अभी तक जोहर 2 बजे तक नहीं पढ़ी है, तो आप पढ़ें उस वक्त, 2 बजे भी पढ़ें। आप ये ना कहें कि नहीं अभी तो बहुत देर हो गई, नहीं मैं तो अव्वल वक्त में पढ़ती हूँ, मुझे तो 11:15 बजे ही पढ़ना था, नहीं वो नहीं है। तो आपका बेहतर ये कि आप 12 बजे पढ़ लें, 12:30। दैट्स व्हाई अल्लाह ने रेंज दिया ना, रेंज दिया। अव्वल वक्त में पढ़ना इज बेहतर, बट यू कैन प्रे एनी टाइम। कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, यू कैन प्रे अंटिल द एंड। मगरिब का ये है कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप असर को इतना लेट पढ़ लें कि बिल्कुल मगरिब का टाइम आ जाए, धूप पीली हो जाए। तो फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ी है, असर नहीं पढ़ी है, तो अगर सूरज गुरूब नहीं हुआ, 5 मिनट भी बाकी, 2 फिर भी आप पढ़ लें। ये नहीं कि अब तो कज़ा हो गई, लोग कहते हैं अब तो कज़ा हो गई, मेरे सामने लोग कहते हैं अब तो कज़ा हो गई, अब तो मगरिब का टाइम नहीं रहा, तो ये नहीं है ये। और फिर इशा के लिए स्पेशली ये आप देर से पढ़ें, ताकि आपकी लास्ट थिंग शुड बी द इशा की नमाज, ताकि आप उस इबादत के बाद आप दुनियावी काम ना करें। यू सी, देयर इज अ बिग विजडम इन दिस। इशा के बाद दुनियावी काम नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, इशा के पढ़ के फिर शादियों पे जाते हैं, शादी का टाइम रखते हैं 7 बजे कार्ड के ऊपर, लेकिन सब अपना सब कुछ करा के, टीवी का ड्रामा देख के, सब कुछ करके, जब 9 बजे न्यूज का टाइम होता है, उसके बाद फिर वो लोग तैयार होने जाते हैं, फिर इशा पढ़ते हैं, फिर इशा पढ़ के फिर निकलते हैं, तो 10-11 बजे पहुंचते हैं, फिर खाना 12-1 बजे मिलता है, घर वापस सुबह के करीब आते हैं। आई डोंट नो अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये होता था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इशा की नमाज शुड बी योर लास्ट थिंग। हाँ, अगर आपको जमात की नमाज मिल रही है, जमात की नमाज मिल, रिमेंबर दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि जमात में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको सो मेनी टाइम्स मोर रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो वो ठीक है। अगर आप जमात की नमाज में जाएं, तो फिर अगर आप कहीं भी गए हो, जैसे हम फंक्शंस में यहाँ जाते हैं होटल्स में, तो हर होटल में जब जाते हैं तो वहाँ नमाज का इंतजाम होता है, तो आप जमात की नमाज वहाँ पढ़ लें, उसके बाद जितना कंटिन्यू हो रहा है आप कर लें, और उसके बाद फिर अगर जो भी है आपका, सो योर बेस्ट थिंग इज इशा के आप लेट पढ़े, बट इफ यू कैन फाइंड कांग्रेगेशनल प्रेयर, जमात की नमाज, देन यू प्रे विद द जमात। शनाज आपने हाथ उठाया जी, कुछ सवाल है आपका? मैं एक और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा पूछ लूं जी, इसी से रिलेटेड ईशा की नमाज। शनाज 1 मिनट ठहर जाए, बुशरा खत्म हो जाए। ईशा की नमाज जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो जब ऐसे तहज्जुद की नमाज का है ना कि निस्फ रात या तीसरी रात, तो वो मगरिब तो आजकल अर्ली हो रही है, तो ऑलमोस्ट अगर आप 11 बजे नमाज पढ़ें या 12 बजे भी पढ़ रहे हो, तो फिर क्या हम तहज्जुद भी इसके साथ नफिल पढ़ सकते हैं ऐड करके, एंड देन वितर पढ़ें? देखिए, जो स्ट्रॉन्गर ओपिनियन है ना, वो ये है कि आपके जो इशा का टाइम, जैसे ही आपने इशा की नमाज पढ़ ली, ठीक है ना, इशा की नमाज पढ़ ली, उसके बाद से आप किसी वक्त भी आप क़ियामुल लैल कर सकते हैं, क़ियामुल लैल कर सकते हैं। और कुछ ओपिनियंस ये हैं कि नहीं, आप उस वक्त देखें, क़ियामुल लैल अगर टाइम स्टार्ट भी हो गया, जैसे तरावी पढ़ते हैं,
तरावी पढ़ते हैं, इट इज पार्ट ऑफ क़ियामुल लैल, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इशा, राइट? इशा खत्म हो जाती है, उसके बाद तरावी पढ़ते हैं, सो दैट इज क़ियामुल लैल। लेकिन क़ियामुल लैल एंड तहज्जुद दोनों क़ियामुल लैल में आती है। क़ियामुल लैल में तरावी भी और तहज्जुद भी दोनों कम अंडर क़ियामुल लैल। तो अब क़ियामुल लैल पढ़ सकते हैं, देन यू विल मिस द टाइम, जो कि मतलब मैं फर्ज नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इट इज बेटर कि आप उस वक्त पढ़ें जो फजर से पहले का टाइम है, विच इज द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। आप अगर नाइट को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये जो आप बता रही हैं 11 बजे, सेकंड हिस्सा होगा ना, या फर्स्ट हिस्सा होगा नाइट का, तो वो हिस्सा जबकि एक्चुअली टाइम तो स्टार्ट हो गया, बट यू विल मिस दैट पार्ट प्रेइंग तहज्जुद एट द लास्ट आवर। एंड आई थिंक वो ही टाइम है जब अल्लाह ताला कहते हैं, जब तीसरा पहर होता है, जब मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट होता है, जबकि अल्लाह ताला कम्स डिसेंड्स फ्रॉम द सेवंथ स्काई टू द फर्स्ट स्काई, एंड ये कहते हैं कोई है, कोई पूछने वाला है, कोई मांगने वाला है, कोई मगफिरत तलब करने वाला, तो यू डोंट वांट टू मिस दैट चांस। तो मैं अपनी तरफ से, मुझे यही लगता है, मेरे लिए मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं सो जाऊं और मैं उस वक्त उठ जाऊं तो वो बेहतर है कि तहज्जुद उस वक्त पढ़ें जबकि अल्लाह ताला डिसेंड कर रहे हैं और मांग रहे हैं हमसे। क्लियर है बुशरा? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी शनाज, आपने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने ये पूछना था कि मतलब वो नमाज से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मतलब उन्हीं चीज़ों में ये बात आती है कि जब अजान होती है तो हमने नॉर्मल ट्रेंड यही देखा है कि औरतें सर पे दुपट्टा जी दुपट्टा इसकी ले कोई तुक लेती नहीं हैं है, कि उसकी कोई तुक नहीं है। और मर्द जो हैं, एहतराम है तो फिर औरत और मर्द दोनों नहीं के लिए है ना? नहीं 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 नहीं, देयर इज नथिंग एज सच। अजान सुन के आपको सर पे ओढ़ना नहीं है, सर आपको सर पे हर वक्त ओढ़ना है ही। As a Muslim, your dress, your code of conduct, your dress code is to cover yourself, except your face and hands, ठीक है ना? अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर ये एक स्टूपिड बात है, बिल्कुल स्टूपिड बात है कि उधर से अजान हो रही है और आप एकदम से सर पे नैपकिन रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, रुमाल रख रहे हैं, पर्स रख रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप इस अजान की इज्जत कर रहे हैं। ये अजान की इज्जत नहीं है। अजान की ये कि जब अजान हो रही हो तो बातें ना करें ना, बातें कर रही होंगी तो बातें रोक दें, और जब अजान हो रही हो अजान का जवाब दें, पूरी अजान का जवाब दें, और अजान के बाद जो अज़कार हैं वो करें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, वो करें। बस यही पूछना था। थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ, मुझसे किसी ने ये पूछा था, अगर जैसे औरतें जॉब भी करती हैं ना, तो वहां पर अगर वो किसी से हाथ मिलाएं कुछ करें तो क्या उन्हें दोबारा वजू करना पड़ता है? किसी मर्द से मेरा मतलब है। तो क्यों हाथ मिलाएं, सबसे पहले ये बताएं। हाँ यही तो है, लेकिन पूछा था तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। देखिए कैसे वजू यहाँ पर टूटता है सब अवेयर हैं, यहाँ पर सब अवेयर हैं। अगर आप अमेरिका में, सब अवेयर हैं। आप देखें बड़े बड़े आप जाते हैं, कितने हमारे डॉक्टर्स हैं, ये हैं वो हैं, जिसके पास भी जाते हैं वो आपको इस तरह करके ऐसे करते हैं, वो आपको हाँ बिल्कुल हाथ मिलाएं, ठीक है ना? नहीं मिलाना चाहिए। नहीं, आप अगर मना कर दें तो लोग नहीं मिलाते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने मिला ली तो क्या इसका वजू टूट कभी आप जाएगा? एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में आ जाती हैं कि वहां पर आप स्टेज पे हैं, इतने लोग हैं, आपको एक प्राइज मिल रहा है, लोग खड़े हुए हैं, और वो जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो आपसे हाथ मिला रहा है। उस शर्त में अगर आपने हाथ मिला लिया, ठीक है ना, आप मिला लिया, समझे मजबूरी है, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है कि वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी फॉर द होल थिंग, और वो एक मुसलमानों के अगेंस्ट एक शुरू हो जाएगा ना, कि देखा ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उस वक्त समझिए अगर उसने ऐसे मौके पे हाथ मिला लिया, ये नहीं कि ये मेरा बॉस है, ये मेरा राजिक है, राजिक सिर्फ अल्लाह है, से हाथ मिलाने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर हाथ मिला लिया तो रोजा तो नहीं टूटेगा ना? नहीं रोजा नहीं, मैं वजू की बात कर रही हूँ। सॉरी वुजू तो नहीं। अच्छा ओके बाकी मतलब ऐसे अगर मिलाए तो फिर दोबारा वजू करने की जरूरत है, राइट? नहीं, अगर आप हाथ मिलाते हैं तो ये कांटेक्ट का मतलब जो है, तम ज्यादातर स्कॉलर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स आर अग्रीड कि ये जो है इट मींस कि अपनी वाइफ्स के साथ सेक्सुअल इंटीमेट कांटेक्ट करके आए हैं। अच्छा Not अच्छा with shaking hand. लेकिन अगर कर लिया और अगर दोबारा से वुजू कर लें तो अच्छी बात है ना, एक अच्छी बात है, गुनाह तो धुल जाएंगे ना थोड़े से। बिल्कुल सही बात है, मतलब अगर सही है। हाथ मिला लिए, गुनाह कर लिया, तो वो जाके फिर उस वक्त अपने वुजू कर लें, तो कम से कम वुजू, एक वुजू से दूसरे, देखिए वुजू का मैंने आपको बताया था, जैसे ही हम वुजू करते हैं तो हमारे गुनाह माफ होना शुरू हो जाते हैं, एक एक चेहरे पे, हाथ पे, सब। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, मैंने ये सब बताया था शायद इस क्लास में ना बताया
جاتا ہے اور لیکن اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جیسے ہم وضو ختم کرتے ہیں اور اشہد اللہ الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے آپ کو, چھوٹے جتنے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں. تو our گناہs are being forgiven like one prayer to the other, one wudu to the other. وضو ختم کرنے کے لیے ہماری زندگی میں اللہ نے مرسی ہی مرسی رکھی ہے ہمارے لیے. اللہ wants to forgive us. جی فریدہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں پورے دن کے لیے تو اس میں پھر کسی نہ کسی نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہوتا ہے, تو یوزلی ہم ریسٹ روم میں جا کے کہیں وضو کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پاؤں کو جیسے پورا اس طرح نہیں دھویا جاتا جیسا کہ ہم گھر میں دھو سکتے ہیں, تو اگر ہم ہاتھ گیلا کر کے اپنے پاؤں پہ پھیر لے نہیں, جی پھر کیسے کریں؟ موزہ پہن کے جائیں. سفر پہ جا رہی ہیں, آپ کو پتا ہے آپ نے سفر پہ جانا ہے, آپ کے نماز کا وقت آئے گا, آپ موزہ پہن کے جائیں. بس جی سمپل یہ ہے. اور پھر اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کچھ ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کے پانی پور ہو جائے آپ کے پاؤں کے, چاہے ایک دفعہ ہو, کیونکہ ریکوائرمنٹ ایک دفعہ کی ہے. سنت 3 دفعہ کرنی, لیکن آپ نے ریکوائرمنٹ ایک دفعہ آپ کے پاؤں کے اوپر پانی پور ہونا چاہیے, ایسے مسا نہیں ہونا چاہیے پانی سے. جی وہ تو مجھے اچھے سے دوبارہ سے پتا ہے. شاید وہ جو وضو والا جو ہے نا, آئی تھنک پیوریفیکیشن, بلکہ میں ایک سمپل والا جو ہے جو میں نے ابھی کیا تھا کچھ عرصے پہلے ICOI میں, اروائن کی مسجد میں, فار نیو مسلمس, وہ کنورٹس کے لیے تھا. اٹس اے ویری ایزی ون, انگلش میں لیکن بہت ایزی. 1 گھنٹے میں تمام مسائل ہے میرے خیال ہے, وضو کے اور تیمم کے, ایک سیشن میں 2 سیشن میں, غسل, سب کچھ. آئی تھنک دیٹس دا ایزیسٹ ون. اگر بچوں کو بھی سنانا ہے نا تو وہ انگلش میں ہے, تو وہ آپ کو میں اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ وہ سن لیں. آئی تھنک اس میں سب ہونا چاہیے. جی فریدہ, اور کچھ آپ بول رہی تھی؟ جی ایک اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک ویڈیو یہ 2-3 دفعہ دیکھی ہے کہ ایک کافی مشہور ہے وہ, کہ وہ وضو کر رہے ہیں پانی کی آدھی بوٹل سے, تو آدھی بوٹل سے تو پانی بہایا ہی نہیں جا سکتا نا, تو وہ پھر کیسے؟ بالکل بہایا جا سکتا ہے اوپر سے, کیونکہ وہ آپ ایسے دیکھیں, بہانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوٹل سے اس طرح پانی آپ نے ڈالا اور پھر آپ نے ادھر سے ادھر تک پورا اس طرح وہ چلا گیا, ٹھیک ہے, آپ کے ہاتھ کے اوپر پورا ادھر سے ادھر تک بہ گیا. کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف ایستس کا بہت مشہور ہے یہ, کہ وہ انہوں نے آئی تھنک شیخ یاسر قادی نے کس نے بتایا تھا کہ شیخ یوسف ایستس ان کے پاس بیٹھے تھے, اور انہوں نے جب وضو کیا پلین میں تو آدھے بوتل سے انہوں نے وضو کیا, اور پھر کہتے ہیں او آئی کوڈ ہیو ڈن مائی غسل, ہنس کے بولے نا, وہ تو بہت مذاق کرتے ہیں, تو اس طرح انہوں نے کہا. تو ہو سکتا ہے آدھے بوتل سے بھی پانی, میں نے خود کر لیا, آپ کو پتا ہے, میں سوچتی تھی کیسے ہوگا. ہم پچھلے تراویوں میں ہم وہاں جاتے تھے, کیا نام ہے, بھول گئی نام, تو ادھر ہم جاتے تھے مسجد پہ نا نماز کے لیے, تو تراوی کے لیے. اب اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے, چونکہ وہ کوئی ایسا دن تھا کہ انہوں نے وہ ہال وال سب بند کر دیا تھا, اپنے ہوٹل کے ساتھ کا تھا, اور انہوں نے اس کو باتھ روم بھی بند کر دیا تھا. اب مجھے وضو کی ضرورت پڑ گئی, تو میں کیا کروں, میں نے وہ پانی کی جو چھوٹی والی بوتل ہے وہ لی, اور میں جا کے سڑک پہ جو اس مسجد کے ساتھ تھی ادھر جا کے, مسجد تو نہیں تھا, ایک چھوٹا سا کمرہ ہی تھا, باہر نکل کے, اور میں نے, آپ یقین کریں کہ آدھے بوتل میں میں نے پورا وضو کر لیا. لیکن پیروں پہ میں نے موزے پہنے ہوئے تھے, ظاہر ہے کہ میرے موزے تھے, اس پر میں نے مسا کیا. تو خالی اگر دھونے کے لیے آپ کا منہ رہ جاتا ہے اور ہاتھ رہ جاتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتا ہے. پیروں پہ تو موزے, اب وہ یوسف ایستس نے بھی پیروں پہ موزے ہی پہنے ہوں گے نا, سفر میں تو موزے ہی پہنتے ہیں. تو یہ جب آپ کہیں بھی سفر پہ جائیں تو موزہ ضرور پہنے. میں تو گھر میں بھی یہی کرتی ہوں, صبح ایک دفعہ جب میں وضو کر لوں یا نہا کے نکل لوں تو اس کے بعد پھر میں موزے نہیں اتارتی, عشاء تک نہیں اتارتی ہوں. بہت گرمی ہو تو پھر اتار دو, الگ بات ہے, لیکن یہاں اتنی گرمی تو نہیں ہوتی, گھر تو پھر بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھا بتایا. یوزلی ٹریول کرتے ہوئے یہ پرابلم ہوتی ہے, تو میں آئندہ یاد رکھوں گی. جزاک اللہ خیر. دیکھیں میں بینکاک میں جاب کرتی تھی, ٹھیک ہے نا, یونائٹڈ نیشنز میں. اب اس میں یہ ہوتا ہے, اتنے سال میں نے وہاں جاب کیا, اور اس میں پوری بلڈنگ میں گنتی کے مسلمان تھے, اور عورتوں میں تو میرے خیال ہے کہ ہارڈلی کوئی ہوگا, ٹھیک ہے نا, 2 لوگ ہوں گے, ہم 3 لوگ ہوں گے, یا کوئی تھائی لوگ ہوں گے, 1-2 مجھے پتا نہیں ہے. لیکن I was the only one with the hijab on my head, and I was the only one جو وہاں جا کے پبلک, ہمارے جو عورتوں کا باتھ روم تھا اس میں وضو کرتی تھی. اور گرمی لگتی تھی تو مجھے یہ ہوتا تھا میں اوپر پاؤں کیسے چڑھاؤں. اس وقت جو میں موزے نہیں پہن سکتی تھی, مجھے لگتا کہ بہت گرمی ہے, تو میں ان لوگوں سے گھبراتی نہیں تھی. میں نے کہا سب کو معلوم ہے کہ
मैं नमाज पढ़ूंगी। तो मैंने अपने लिए बॉटल भी रखा था, अपने लिए बाथरूम, क्योंकि ये तो वहां पर नहीं थे ना उस वक्त, ये जो आजकल मुस्लिम शावर्स हर जगह पे होते हैं नहीं थे, तो बॉटल भी रखती थी, पाँव भी ऊपर चढ़ाती थी। एक दफा चढ़ा लेते हैं तो बस ठीक है ना, आपने चढ़ा लिया, लेकिन अब ये कि आप बार बार एक ही जगह पर तो आप नहीं जाएंगे कि बार बार, अब लोग आपको देख रहे होंगे, आपको फील हो रहा होगा एम्बेरसमेंट, बट इट्स बेटर देन नॉट डूइंग इट। और अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा पानी ले लें बॉटल में, वहां से ले जाके और जाके बाथरूम में जाके या थोड़ा सा वहां पर धो लें आप अपने, एक दफा पानी डालना है पाँव पे और फिर उसके बाद उसको स्प्रेड कर लेना है। लेकिन ये नहीं करना कि हाथ पे लेके और फिर फैलाना, इट शुड बी थोड़ा सा बह जाए पानी, इट शुड पोर ऑन योर, बस पोर हो जाए थोड़ा सा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ही है जी। और कोई सवाल नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, डन इंशाल्लाह या जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। प्लीज आपको भेज दें इंफॉर्मेशन तयम्मुम का। वो जो मैंने अरबाइन की मस्जिद में किया था वो जी भेज भेज दें प्लीज। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जन्नतुल मकाम।